Hello, dear friends. I'm Dr. Shalini Bhumnani. I do numerology, Vastu, tarot card reading, and I'm a geopathic energy consultant. So, today I've come up with a series for you, Vastu for Happiness. हम बात करेंगे हम हैप्पीनेस को कैसे इंक्रीज करेंगे एज विद द हेल्प ऑफ वास्तु. If you don't know much about using Vastu principles, and still, if we follow certain directions, we apply some, remedies for the directions, and also follow a certain lifestyle, we can still achieve happiness. Let's see how. Few days back, I just came across an article. Just where someone said that there are many times when we have everything, हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी हम खुश नहीं हैं. We are not happy from inside. So we have that urge of, we always have that quest of knowing, understanding the reason of our unhappiness. उस अनहैप्पीनेस के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, हम क्यों खुश नहीं हैं, ऐसी क्या बहुत सारी बातें हैं. आप सोच रहे होंगे इसका वास्तु से क्या लिंक. यस, इसका वास्तु से बहुत लिंक है. हमारी बॉडी में आई थिंक आप सब लोग काफ़ी लोग इससे अवेयर होंगे कि हमारी बॉडी में 4 तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. यस, 4 हॉर्मोन्स आर रिलीज इन आवर बॉडी, लाइक दैट इज एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटाइसिन. These are the hormones which are responsible for our happiness. And yes, they have a direct link with Vastu, because there are some specific directions which are responsible for releasing these hormones. For example, if first of all we talk about the hormone called endorphin, we do exercise. It is said after exercising, your endorphin hormones are released. After doing some funny activities, you're watching some funny stuff, you are maybe cracking jokes with your family. Laughter is also another way where endorphins can be released. तो ये सब चीज़ें करने से जैसे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज़ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. येस डियर फ्रेंड्स, द ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज हॉर्मोन्स. सो बिकॉज हमारे फन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इस जोन से रिस्पॉन्सिबल है. इस जोन ये जोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो when that zone is disturbed, that means, for example, there is some anti activity happening there, or any fire related activities are happening in that particular zone. So हमारे ये hormones को release होने में हमारी body उतना helpful नहीं होती है. So for that particular thing, what you can do is you can put some nice green plants in that zone, or you can also यूज़ द अगरबत्ती ऑफ चंदन. चंदन की आप अगरबत्ती या चंदन का एसेंस अगर आप उस जोन में डिफ्यूज़ करते हैं, सो दैट हेल्प्स अस टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर जोन, एंड इट हेल्प्स अस टू रिलीज दोज एंडोर्फिन हॉर्मोन्स. नेक्स्ट कम्स योर डोपामिन. सो फॉर डोपामिन अगर हम बात करें तो when we achieve something, it releases our dopamine hormone in our body. एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है हमारे when we get appreciated for little things, maybe in our office, in our workplace, in our home. So this kind of hormone, this dopamine hormone is released in our body. So that is also why we can say most housewives are unhappy, because they are generally not appreciated of what they do, or what the work they do. They're not much appreciated or acknowledged. So there could be a reason their dopamine hormones are not released, and that feeling of that feel good factor is not there. वो एक तसल्ली नहीं होती है आप बॉडी में, वो एक अप्रिसिएशन जब तक नहीं आता है, तो आपके इस हार्मोन ये वीक होने के चांसेस होते हैं. तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज आर साउथ डायरेक्शन, एंड ऑल्सो द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो इफ़ वी सी इन केस अगर हमने वी हैव टू कीप अ नोट कि इफ़ हमारे साउथ डायरेक्शन में वी हैव सम ब्लू कलर और सम वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, then there could be a possibility that zone is disturbed. So we have to if there is some water related activity or some blue color, we have to remove that, and also
we can put some pictures or our achievements, like our trophies or certificates, the pictures of achievements, whatever we have, we can put in that south zone, or in also the north of northwest zone. Or also we can put we can place thoda sa ganga jal and maybe in a सिल्वर के ग्लास में आप गंगा जल डाल के रख सकते हैं, और प्लस वहाँ पे आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पर्ल्स शेल भी प्लेस कर सकते हैं. सो दिस विल हेल्प यू बैलेंस दीज बोथ एलिमेंट्स एंड यू नो द रिलीज ऑफ दीज डोपामिन hormones which are another a very good source of being happiness for you. So dear friends, today we have discussed about two hormones, endorphin and dopamine. So in our next video we'll discuss about the other two hormones. So keep watching. Hello dear friends, I'm Dr. Shalini Gundani, your Vastu consultant, numerologist and tarot card reader. हम वास्तु फॉर हैप्पीनेस के सीरीज़ पे बात कर रहे थे, और पिछले वीडियो में हमने कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिस्कस किया था. जी, हम बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी में 4 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, जो हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत मेजर जिनका रोल है, और कुछ डायरेक्शंस हमारी इन हार्मोन्स से रिस्पॉन्सिबल रहती हैं. सो उसी को हम आगे लेके चलते हैं. हमने बात की थी एंडोर्फिन्स और डोपामिन हार्मोन्स के बारे में. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हार्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन. सो सेरोटोनिन, like it is that hormone which is released when we feel very satisfied. जब हम लोग किसी चीज़ को लेके बहुत satisfy हो जाते हैं, that what we have done, there could be something giving back to your society or to the nature. That means basically that particular thing where you think you've utilized some precious time of yours, और आपने किसी की हेल्प करी है उस चीज़ के लिए. कोई सोशल एक्टिविटी हो सकती है, कुड बी सम आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, थ्रू मीडिया और इंटरनेट, थ्रू सोशल व्हाटएवर. सो बेसिकली जहाँ आपने किसी के लिए कुछ किया और आपको अंदर से एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन फील हुआ है, आप बहुत कंटेंटेड फील कर रहे हो, दैट फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट जब आप में आती है, तो आपकी सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो बॉडी में रिलीज होता है, जिसके लिए जो हमारी डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो जो है ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट. सो बेसिकली जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी ज़रूरत है और हम उसे कन्वे नहीं कर पाते, हम उसके लिए अपसेट हो जाते हैं, यानी कि हमारी वो फीलिंग जो है ना, वो एक कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं आती है, हमें वो लगता है हम अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाए हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स जब आती हैं, इन दैट केस प्रोबब्ली दोज हार्मोन्स आर अफेक्टेड. एंड स्पेशली अगर हमारा ईस्ट ऑफ साउथ और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर हमारा इम्बैलेंस्ड है, तो हमारे साथ इस तरह के चांसेस आप देखिए हो सकते हैं. सो अगर हम बात करें इन हार्मोन्स की, तो ये हार्मोन्स हमारे हैप्पीनेस के इफ़ेक्ट को हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत इफ़ेक्ट होते हैं. तो अगर आस्ता आस्ता ये सारे हार्मोन्स एक एक करके हमारे इम्बैलेंस होते जाते हैं, तो हम बहुत मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस से हमारे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके लिए आप कर सकते हैं, आप एक पिक्चर ऑफ शेक हैंड्स, लाइक एक शेक हैंड्स करता हुआ एक पिक्चर आप अपने इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, और प्लस आप वहाँ पे कैम्फर क्रिस्टल्स डिफ्यूज़ कर सकते हैं, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल for making good connections, good that commitment level. आप अपना एक promising जो इमेज होती है, उस तरह की इमेज आपको हेल्प करेगी उस डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन. So these hormones are basically released when you are you come in contact with another human being, like hugging someone, or you're shaking hand with someone, you're putting your arms on someone's shoulder. So these, when you're coming in direct contact with another human being, so these kind of oxytocin hormones are released. Like the best thing is like the Jadoo Ki Jappi from Munna Bhai. It really works. So that kind of hormones also give you a very that feeling of happiness. तो अगर हम बात करें उसका particular direction which is responsible for that is your southwest direction, which is also another relationship sector
तो वहाँ पे आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अ पिक्चर ऑफ नाइस बॉन्डिंग विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर और विद योर किड्स, that kind of picture you can keep in your southwest direction. You can have a nice bonsai of a Christmas tree in that direction. This is also a very good thing to balance that southwest corner of your house. Then you can also place a rock of rose quartz crystal, which is again another very good element for balancing southwest direction and balancing the bonding element. Or you can also have a small crystal bowl in which you can put a little bit of long, that is clove and elaichi, like green cardamom. You can put in that zone, which is again a very good element, remedy for balancing the southwest zone of your house. So now इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट, सो इट्स वेरी सिंपल. हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें एंडोर्फिन्स रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज करना है, हमें डोपामिन के लिए यू नीड टू अकम्प्लिश सम गोल्स. For serotonin, we need to be nice to others, we need to be good to others, we need to have that contentment to give to someone. And for oxytocin, basically we need to hug our kids, our family, our friends. So when we are happy, it's really important. When we are happy, it's basically very easy for you to deal with your problems, with your lots of things. You can deal it in a better way. तो अगर आप, मैं एक और चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगी. अगर आप, ये तो छोटे आपके बेसिक हार्मोन्स हो गए जो आपके पर्टिकुलर हैप्पीनेस को वो करते हैं, बेसिकली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. बट अगर आप बहुत मेजर हार्मोनल इम्बैलेंसेस फेस कर रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आपके अपने घर के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या आपने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं. मे बी योर पर्सनल वार्डरोब और योर पर्सनल थिंग्स आर केप्ट इन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, या आपके घर का मंदिर उस तरफ है, या आपके वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि आपको मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. उस केस के लिए आप एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं. आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटी सी बॉटल में चूना दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट आप वहाँ पे रख सकते हैं, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग योर सेल्फ विथ हार्मोनल इम्बैलेंस. इट कैन हेल्प यू आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का जो ट्रीटमेंट है उसको और हेल्प उसमें मिलती है. So I think these tips had been really useful for you. So in this series of Vastu for Happiness, we will soon coming up with another nice topic. Thank you. Hello dear friends, मैं डॉक्टर शालिनी गुगनानी, योर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट. सो हाउ आर यू? सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आज हम बात करेंगे नए साल के, दैट मीन्स 2020 में आने वाले टाइम की, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेस्टिनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. उनके लिए नेक्स्ट ईयर का टैरो रीडिंग हम करेंगे और देखेंगे कि वो साल उनके लिए क्या लेके आया है. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, जिनका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या ड्राइवर नंबर नंबर 1 है. दैट मीन्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28, इन 4 डेट्स में अगर वो बॉर्न हुए, दैट मीन्स जैसे हम बात करते हैं 19 इज 1 + 9 इज 10 एंड देन इट कम्स टू 1. अगैन उनका भी लाइफ पाथ नंबर इज 1. 28 is again 1. So all those people whose destiny number, whose life path number, whose driver number is 1. So let's take out the cards for them. Okay, so the card says for you number 1 people कि आपकी लाइफ में इस समय अगर मैं देखूं, I can see lots of abundance in your life, but especially if you're looking for some expansions in your new in your business, or maybe you're looking for a new venture. So I'm really seeing some things getting really fulfilled in your life, and in fact you are also there are possibilities, there are things. What I can see in the cards is the blessings of Ma Durga
और योर आई कैन से द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर. आप इस अपनी मदर की ब्लेसिंग से, अपनी बड़ों की, जो भी आपके घर में फेमिनिन बड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी एडवाइस से अगर आप ये चीज़ें लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक फ्रूट दिखा रहा है मुझे. उसके अलावा मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, जिन लोगों का मैरिज ऑन कार्ड्स है, मीन्स कोई मैरिज से रिलेटेड बातचीत चल रही है या उनका कोई दे आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन मैरिज दिस ईयर. सो number one people, yes, that there could be a good news for you also. And I can also see when I'm talking about business, I can also see one more thing, that there is hard work also. आप ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि आपके सामने बहुत easy मनी है. येस, फुलफिलमेंट है, अबंडेंस है, बट दैट यू हैव टू टेक केयर कि आपको उसके साथ साथ थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है. यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क ऑल्सो. एंड स्पेशली वन थिंग इम्पॉर्टेंट यू हैव टू सी कीप इन माइंड इज कि आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है. आप अगर फोकस से, अपनी एक गोल से और हार्डवर्क से आप अपने बिजनेस को आगे लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये साल जाने वाला है. सो ओके, सो लेट्स गो फॉर नंबर 2 पीपल. नंबर 2 इज़ मून. मून से रूल होने वाले लोग, और नंबर 2 में डेट ऑफ बर्थ आता है नंबर 2, नंबर 11, देन नंबर 29 is your and 20. These are the people who have the destiny number as number 2. Okay, for number 2 people, there I can see स्पेशली फॉर दोज जिनका इस समय एजुकेशन का पीरियड चल रहा है और वो एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, कोई उनके एग्ज़ाम्स ऑन द टाइम हैं या कुछ एंट्रेंसेस के लिए वो अपीयर कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम. और उनके लिए बहुत अच्छा इस समय नॉलेज और विजडम के कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं. आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर पकड़ के रखिएगा. आई विल नॉट से कि यू शुड leave the logics and things behind, but your intuition should be above. अगर आपके मन में कोई चीज़ आती है, because you will get your answers with your intuition. So and there could be some disappointments also in this year for you, जिसमें आप थोड़ा सा काम और अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करके चलेंगे, so that will be really good for you. आपको थोड़ा सा पेशेंट होने की ज़रूरत है. And for young people, I can see lots of travel also this year. So good luck. Thank you. For number 3 people, now number 3 is ruled by planet Jupiter. That means जो लोग number date of birth 3, 12, 21 और 30th को born हुए हैं, उनके लिए let's see what cards have to say. Okay, cards says you are really adventurous. So I think this year you could be going on some adventurous tours or something like that. But you also have to really take care कि आप कोई भी नया स्टेप उठा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दे के बहुत इमेच्योर तरीके से आप चीज़ों को मत लीजिएगा. थोड़ा सा खुले दिमाग से कुछ आप अपने मे बी योर some young fellow men, you can take guidance from them, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको अच्छा एडवाइस देने की. मे बी योर एल्डर ब्रदर और योर यंगर ब्रदर, जिससे आप एक एडवाइस लें और आप तब कुछ डिसीजन लें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा. एक मैं आपके लिए टिप दूंगी कि आप माथे पे केसर का तिलक ज़रूर लगाएं इस ईयर में, विच विल रियली हेल्प यू. जो आप कहीं कोई गलती ना कर जाएं उसके लिए आपको एक हेल्प करेगा. तो दैट कुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर यू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4 पीपल. सो नंबर 4 पीपल, द कार्ड सेज number 4 people are the people who are born on date of birth 4, 13 and 31. So card says for you if I say आपका कार्ड एक लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस शो कर रहा है. दैट मीन्स अगर आप कुछ लव अपने रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ आपकी अनबन चल रही है अपने रिश्तों में, पिछले साल से लेके कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं, तो आई थिंक दिस आई कैन सी
that balance in your love relationships in this year. Maybe उसके लिए शायद आपको कुछ चीज़ों का तालमेल बिठाना पड़े, आपको कुछ कई चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़े, ताकि जिसमें कि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके रख सकते हैं. तो आई कैन सी दोज थिंग्स कमिंग बेटर ऑन योर वे, जो पिछले कुछ टाइम से ख़राब चल रही थी. उसके साथ साथ आपके कुछ झगड़े भी, अगर किसी के साथ कोई क्वेरल्स या कुछ और डिस्प्यूट्स किसी रिलेशनशिप के अलावा अगर और किसी भी चीज़ में अगर आपके कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो आई कैन सी दोज ऑल्सो getting solved. And I also see money coming on your way. I also see the divine is really helping you out in getting the things done easy for you. So I will say that you can आप थोड़ा सा अपने नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा सा इन्हांस करें, वहाँ पे कुछ ब्लू कलर को यूज़ करें, और ये आपके लिए एक थोड़ा सा एक बेनिफिशियल टिप हो सकता है. Okay, so let's go on to number 5 people. So number 5 is ruled by planet Mercury, and the people born on 5th of any day, 14th and 23rd of any month. So number 5 people, the cards are saying that this year will be a very happy and contented the feelings in your family. आपके फैमिली में आई कैन सी समथिंग, बहुत अच्छा कनेक्शन मैं देख रही हूँ. अगर आपकी पार्टनरशिप में, आपकी फैमिली में आप अगर कुछ पिछले कुछ अगेन फ्रॉम दिस लास्ट 2019 अगर कुछ मन मुटाव चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके क्लोज नियर्स एंड डियर्स में अगर आपके कुछ मन मुटाव चल रहे हैं, तो उसमें आई कैन सी लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग अराउंड. And I also see going you all on a some nice vacation. आप एक अच्छे वेकेशन पे जाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं. And I also see कि अगर आप कुछ थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ऑन योर बिजनेस फ्रंट, आई ऑल्सो सी कि अगर आप हल्का सा एक डिसेप्शन, लाइक अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई पीछे से आपको कोई बैक आपके पे चुगली कर रहा है या आपका पीछे पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, विच कैन बी अ लिटिल डेंजरस फॉर यू. सो नेक्स्ट इज number 6. Number 6 people, that means the people who born on 6th, 15th and 24th of any month. So I see a little disappointment in your relationships. Basically I don't know, I am seeing that आप relationship से भाग रहे हैं, आप कहीं कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आप उनको आप आगे निकलना चाह रहे हैं. आप यू आर नॉट एबल टू stick to what you have actually, and you are looking something different what you have. तो for that I will say कि आप एक्चुअली कुछ चीज़ों को पे आंखों पे पट्टी लगाए हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को असेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी उन सिचुएशंस को असेस नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास है क्या, what things are there in your hand, आप उनको जज नहीं कर पा रहे हैं. सो आई विल से कि जस्ट थिंक ऑन टू द थिंग्स, थिंक वाइजली. आप अपने आंखों पे पड़ी पट्टी को हटाए, मे बी डू अ लिटिल मेडिटेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू. आप थोड़ी देर अपना बैठें, सोचें व्हाट एग्जैक्टली, मे बी यू कैन गेट अप अर्ली एंड दैट पर्टिकुलर time you can spend on yourself. You can think deeply and do a little meditation which will help you think what things you are leaving behind and what all you have to catch. So for number 6 people, I will say a little bit of moon energy is required for you, because आपको वो sensitivity की ज़रूरत है. तो आप थोड़ा सा समय अपना moonlight में spend करें. I think that will be really helpful for you. I also see a little transition, तो आप that will help in that thing also. So fine. So I think a moon energy will be really helpful for you. You can also go for a nice beach bath. आप एक अच्छे बीच साइड पे जाके वेकेशन लीजिए and just sit in that sea salt, that salt river, the sea basically.
वो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी आपको बेसिकली आपको बहुत उन कुछ नेगेटिव थॉट्स से और उन चीज़ों से हेल्प मिलती है। बहुत अच्छा आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे एंड दैट यू कैन कम अप फ्रेश एंड देन टेक अ कॉल व्हाट यू हैव टू टेक। So number 7 people, they are ruled by Ketu, and that means the people who are born on 7th, 16th and 25th of any month. So let's see what cards have to say for you. So for number 7 people, I say आप इस समय बहुत इल्यूजन्स में हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, बहुत बहुत डे ड्रीमर्स हुए हैं। बट ये ठीक है, दैट्स नॉट बैड, बट वो इल्यूजन्स, वो शायद वो स्मोकी थिंग वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपको एग्जैक्ट क्या है वो देखने में हेल्प नहीं कर सकती। तो आपको अपने आगे से वो एक धुआं हटाना है, वो इल्यूजन से बाहर आना है, वो भटकाव से बाहर आना है। दैट मीन्स आपको ऐसे लोगों की बात सुननी है जो रियली आपको सही सलाह दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। यू रियली नीड अ मेंटोर एट दिस टाइम ऑफ टाइम। आप किसी अच्छे काउंसलर के पास, या आपका कोई जो मेंटोर है, या किसी भी गुरु की शरण में, या आप किसी ऑकल कंसल्टेंट और टैरो रीडर और एनी कंसल्टेंट वेयर यू कैन हैव दैट पूरा आपको अच्छे से जो आपको गाइड कर सके कि एग्जैक्टली आपके साल में जो आपकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, आपके आगे से वो धुआं छटने की ज़रूरत है। और अगर मैं देखूं तो आपके वर्क फ्रस्ट्रेशंस भी आप इस समय शायद बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, अपने सर पे आप बहुत बोझा लिए हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी सिचुएशंस को, अपनी लाइफ के सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं। सो आई विल से जस्ट अ स्मॉल थिंग अगेन, आपके लिए भी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 7 पीपल, यू शुड डू लिटिल मेडिटेशन विच कैन रियली हेल्प यू क्लीन दैट थॉट्स, क्लीन दैट नेगेटिव थॉट्स विच आर कमिंग योर वे। एंड यू कैन ऑल्सो डू अ salt bath. That means you can put some little sea salt or any nice I think I'll say some rose flavored salt. Take a bath, put it in your bathing bucket and just do bathing every day with that. So for number 8 people means people who are born on on date 8th, 17th and 26th. So what cards has to say for you? Cards, okay, so I think I can see something really nice news coming your way, some victory coming your way. आपने कुछ अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, या आपने कुछ आपके अगर किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हो, कोई आप किसी एक मैसेज की वेट कर रहे हो जो मे बी फ्रॉम अब्रॉड और समथिंग, यू दैट इज़ रियली ऑन योर वे. सो यू कैन हैव दोज that the cards indicates that success. I can see that success in your cards, the victory जो आप जिनकी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो I can see in your cards. And I can also see some demands जो शायद आपने बहुत टाइम से रखी हुई थी, सोची हुई थी कि मुझे ये चीज़ डिमांड करनी है, दैट मीन्स आई वॉन्ट दिस थिंग, वो जो आप एक थॉट लेके बैठे थे, तो आई कैन सी दैट ऑल्सो रियली फुलफिलिंग इन योर दिस ईयर. बट येस, आई विल से सम यू शुड गो विद अ टीम वर्क. अपना टीम वर्क ज़रूर मत छोड़िएगा अपने काम में. एक टीम वर्क की मदद से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. आई कैन सी अ जर्नी ऑल्सो इन योर वे दिस ईयर. सो फॉर नंबर 9 पीपल, date of birth number 9, 18 and 27, the card says I can see justice. I can see justice. अगर आपका कोई केस पेंडिंग चल रहा था, अगर आपका कोई लीगल इशू पेंडिंग चल रहा था, तो I can see those things happening around for happening good. You can at least वो उनको सिचुएशंस आपके वो केसेस रिजॉल्व हो जाएंगे. अभी आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसमें क्या बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. येस, आई कैन सी दैट ऑल्सो, बट एटलीस्ट वो रिजॉल्व होते दिख रहे हैं, वो चीज़ें सामने आती हुई नज़र आ रही हैं. कुछ आपको आई कैन सी ऑल्सो सम वेरी पावरफुल सीक्रेट्स ऑल्सो रिवील्ड आउट, यानी कि आप
के जो लीगल केसेस है, दैट मीन्स आप जिन कड़ियों के लिए रुके हुए थे, आपको कुछ चीज़ें ऐसे आपकी वो मिल जाएंगे जिससे कि आपको उन लीगल केसेस में से निकलने में हेल्प मिलेगी. तो these were the readings for all numbers from 1 to 9. So I think these have been helpful for you, and if you have got these answers, please do not forget to like, share and subscribe my channel. And for 2020 I will also say one more thing. As this is basically a period of Rahu. So 2020, the number is 2020. So it has the mixed emotions of moon and Rahu. Number 2 is moon and 4 is Rahu. So this moon is 2 is sensitive thing and Rahu. So I just say for the people, I'll just give you a small tip जो आप इस साल पे फॉलो कर सकते हैं. जो लोग बिजनेस में हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से फेस हो रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हमें बिजनेस की वजह से हम बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं, सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल से कि नथिंग इज़ परमानेंट. सो डोंट stress yourself too much, because no matter how bad the situation is, it will change. But still I will just give you one simple thing कि आप एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, जिससे कि आपको उस चीज़ से, स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प मिलेगी इस पूरे साल. और जो बच्चे अगर इस साल बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए सरस्वती यंत्र अगर आप अपने पास अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में, या आप अपने पूजा रूम में, अपने स्टडी रूम में कहीं पे सरस्वती यंत्र रखें, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स. आई होप दिस न्यू ईयर विल बी रियली ग्रेट फॉर यू. विश यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी, डॉक्टर शालिनी गुगनानी, signing off. And again, please do not forget to like, share and subscribe my video. Thank you. So guys, the awaited surprise is here. See this picture closely and find out the hidden number 7 out of numbers 1 to 9. Means जो ये पिक्चर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आपको नंबर 7 जो छुपा हुआ है वो आपको मार्क करना है. 1 से लेकर 9 के बीच में से उस नंबर 7 को ढूंढना है, और जो पहले 3 लोग इसे ढूंढ पाएंगे, दे विल गेट अ फ्री न्यूमरोलॉजी एनालिसिस कंसल्टेशन फ्री. सो गाइज हरी, आपको इसको मार्क करना है और इसका स्क्रीनशॉट भेज के, और वीडियो में दिए गए डिस्प्ले हुए हुए नंबर्स के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट भेजना है. सो हरी आप. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी गुगनानी, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु कंसल्टेंट. आज हम लोग साइकिक नंबर 1 से 9 वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शंस करेंगे फॉर जनवरी 2020. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर जनवरी 2020, फॉर नंबर 1 पीपल, नंबर 1 मीन्स जिनका डेट ऑफ बर्थ वो जो बॉर्न हुए हैं 1, 10, 19 या 28 को, दैट मीन्स उनका साइकिक नंबर 1 है, उनके लिए जनवरी 2020 क्या लेके आया है. तो अगर मैं बात करूं नंबर 1 लोग आपके लिए, अगर इससे पहले दिसंबर की हम पहले बात करते, तो दिसंबर में नंबर 1 वाले आप बहुत हाई और पावरफुल एनर्जीज के साथ आपने दिसंबर मंथ में एंटर किया था. आप बहुत सारी कुछ चीज़ें, शायद सीक्रेट्स भी आपने रिवील किए थे. बट अगर मैं उसको आप जनवरी की बात करूं, तो आप कुछ थोड़ा सा, मैं देख रही हूं कि आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं. आप खड़े होके एक जगह पे स्टैंड होके आप सोच रहे हैं कि मुझे किधर स्टेप फॉरवर्ड करना है. बट अगर उससे रिलेटेड आपके कुछ ट्रैवल्स अगर सामने आ रहे हैं, तो आप कुछ ट्रैवल्स के लिए भी अपने आप को आगे देख सकते हो. उसके साथ साथ अगर मैं फिर से आपके दिसंबर से लेके चलूँ आपको, तो दिसंबर मंथ में आपके कुछ अनप्रेडिक्टेबल और कुछ ऐसे लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपके कुछ सीक्रेट्स आपके रिवील हुए थे, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई जिसपे आपका ट्रस्ट टूटा. सो अब उसी चीज़ से आगे अगर हम बात करें, तो आपके फाइनेंशियल, आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छी आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे. अब नंबर 2 लोगों के लिए, दैट मीन्स जिन लोगों का साइकिक नंबर 2 है, दैट मीन्स कि वो बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या 29th ऑफ एवरी मंथ को, तो उनके लिए जनवरी 2020 इस मंथ
क्या आपके लिए प्रेडिक्शंस आई हैं। तो हम इन कार्ड से आपको मैं देख पा रही हूँ कि अगर हमें दिसंबर मंथ की एनर्जी लूँ तो आप किस एनर्जी से जनवरी में एंटर हुए हैं। तो आप दिसंबर मंथ से मैं अगर देखती हूँ तो आप कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी, शायद आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज को लॉस किया है अपने एरोगेंस, अपनी केयरलेसनेस की वजह से, जिसकी वजह से, या आपका कोई एटीट्यूड ऐसा था जिसकी तरफ वजह से आपने बहुत सारी चीजें स्पॉइल करी हैं अपनी लाइफ में। बट उसके साथ साथ शायद आप एक बहुत कुछ डिफरेंट, अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं, वो रिलेशनशिप की फ्रंट की बात कर रही थी मैं, अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं तो शायद आप एक बहुत होप लेके चल रहे थे, आप एक बहुत केयरफुल उस केयरफुल नहीं थे। बेसिकली मैं कहूँगी आप एटीट्यूड शायद ऐसा सोच रहे थे कि मैं बहुत केयरफुल होकर चल रहा हूँ, बट वो शायद केयरफुलनेस नहीं थी आपकी, वो केयरलेसनेस थी, जिसकी वजह से वो एक आपके कुछ माइट भी कुछ ऐसा एक ग्रीड फैक्टर था जिसकी वजह से आपको लग रहा था शायद मेरी वो होप, मेरी वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बट आप उन एनर्जीज के साथ आप दिसंबर मंथ में एंटर हुए, और उसके साथ साथ अब आप जनवरी में अगर मैं देख पा रही हूँ तो आपने अपने उस एटीट्यूड, अपनी उस एनर्जीज की वजह से कुछ रिलेशनशिप लॉसेस करे हैं इस मंथ में। तो मैं अगर कुछ नंबर 2 वाले लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं तो उनको वो समझ जा रहे होंगे कि अपनी उस एटीट्यूड, उन चीज़ों की वजह से शायद उन्होंने कुछ डिसऑनेस्टी बिहेवियर दिखाया जिसकी वजह से उनका कुछ रिलेशनशिप लॉसेस हुए हैं। प्लस उनके विलिंगलेस भी नहीं थी शायद कुछ कमिटमेंट को लेने की, और प्रोबेबली मैं कुछ एडिक्शंस भी देख रही हूँ, कुछ स्ट्रेस देख रही हूँ। आप शायद उस चीज़ को लेके शायद बहुत पछता रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, जिसकी वजह से आप कुछ एडिक्शंस में जा रहे हैं, और शायद आप कुछ ड्रिंकिंग या किसी और मोड में जा रहे हैं। तो आप उन चीज़ों से केयरफुल रहे, उससे ध्यान रखें, आप उसके लिए कुछ देखें, अपने आप को बैलेंस करें और उन चीज़ों से बाहर आए। और आपके, अगर मैं बिजनेस फ्रंट की बात करूं तो मैं उसमें देख पा रही हूं कि आप एक कुछ नई बिगनिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई चीज़, नया स्टेप लेने की सोच रहे हैं, शायद आप ओवरसीज ट्रिप के लिए भी सोच रहे हैं। तो आपकी इस मंथ के लिए उन एनर्जीज में आपको हेल्प मिलेगी। सो नंबर 3 लोग जिनका साइकिक नंबर 3 है, दैट मीन्स जो लोग 3rd, 12th, 21st या 30th को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए हम बात करेंगे कि जनवरी 2020 की इस मंथ की प्रेडिक्शंस, टैरो प्रेडिक्शंस आपके लिए क्या कहते हैं। तो अगर मैं देखूं कि आप पिछले महीने से दिसंबर में जिन एनर्जीज में थे, तो आप कुछ मटीरियलिस्टिक चीजों की वजह से कुछ आप उन चीजों से कुछ बैड एटीट्यूड में थे। बेसिकली आप बहुत स्टबर्न हो रहे थे और अपनी इमेजिनेशन को फील नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ जिद में थे किसी चीज को लेके, और आप शायद कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आई डोंट नो आप वो ऐसा क्यों कर रहे थे। आप शायद, ऐसा हो सकता है कि आप शायद कुछ मनी इश्यूज में फंसे हुए थे, कुछ आप वर्क फ्रंट पे कुछ फ्रस्ट्रेशंस चल रही थी आपके लिए, आपको फील हो रहा था कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है जिसकी वजह से मुझे शायद उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो हो सकता है इन्हीं सब रीजंस की वजह से आपके शायद एटीट्यूड इस तरह से फील हो रहा था। तो अब उसी को लेके अगर मैं बात करूं तो जनवरी मंथ में आप उन एनर्जी से कैसे आगे आएंगे, तो आपके लिए कार्ड्स ये कहते हैं कि आप वो उस फ्रस्ट्रेशन से, अगर मैं कहूँ तो आप उस फ्रस्ट्रेशन से शायद बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस और थोड़ी रखने की जरूरत है। आपके प्रोजेक्ट्स, जो जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, कुछ चीजें हैं वो आपके लिए रिजल्ट जरूर लेके आएंगी। और मैं साथ में ये भी देख पा रही हूँ कि आप शायद कुछ उन चीजों से बहुत जल्दी में है, आप उन चीजों से बहुत जल्दी बाहर आना चाहते हैं, बट आई विल सी कि थोड़ा सा अपना बैक में भी देखें। आप सिर्फ ये मत देखें आपको जो सामने दिख रहा है, आप थोड़ा सा अपने, कहते हैं कि आंखों की पट्टी को खोल के कुछ चीजों को और विजुअलाइज करें और देखें कि कैसे सिचुएशंस आपके लिए बिल्कुल फर्दर ठीक होती हुई आपको मिल जाएगी। सो नंबर 4 पीपल जिनका साइकिक नंबर 4 है, दैट मीन्स जो लोग डेट ऑफ बर्थ 4 को, 13th को और 22nd को बॉर्न हुए हैं उनका, और 31st को जो लोग बॉर्न हुए हैं उनका नंबर, साइकिक नंबर बनता है 4। तो उनके लिए हम देखते हैं कि आप किन एनर्जी से निकल के आ रहे हो। तो अगर मैं दिसंबर मंथ की इससे पिछले मंथ की रीडिंग्स चेक करूँ, आपकी एनर्जीज चेक करूँ कि आप किस एनर्जी से बाहर आए हैं, या उस मंथ में आप किस एनर्जीज को फेस कर रहे थे, तो उस पिछले महीने में, शायद दिसंबर लास्ट मंथ में, आप शायद कुछ अपने ओल्ड फ्रेंड्स को, अपने पुराने रिलेशनशिप्स को, उन चीज़ों से आप बहुत करेज में थे और आप बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने शायद आ रही थी, तो आप शायद ऐसा फील कर रहे थे कि
उन पुराने कॉन्टैक्ट से, उन पुराने आपके जो लिंक्स थे जो आपने बहुत छोड़ रखे थे कुछ पीछे, जो इनको आपने वापस से उनको गैदर किया है, उनसे आपको काफ़ी करेज आप गैदर कर पाए हैं। और प्लस आप शायद कुछ ओवरसीज ट्रिप्स भी, मैं कहूँ तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपने मिस करी लास्ट मंथ में, जिनका इफेक्ट अगर हम देखें तो अब जनवरी मंथ में आप जिन एनर्जीज को लेके आ रहे हैं, तो बट अगर इसके साथ साथ मैं ये देखूं तो आप उन जो आपके अपॉर्चुनिटीज लॉस हुए, तो उससे मैं आप देख पा रही हूँ कि आपके इस समय आप फाइनेंशियल इश्यूज, आपके जो प्रॉब्लम्स में थे वो आप उनको बहुत अच्छे से गैदर कर रहे हो और आप उनको बहुत अच्छे से फाइनेंशियली इसको आप लेके आ रहे हो और इसको बहुत अच्छे से आप इसको कर पा रहे हो। और साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि आप जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आप उस पर ध्यान दें, आप अपनी मेंटल क्रिएटिव एबिलिटीज को जरूर पकड़ के रखें। तो उससे अगर मैं देखूं, और जो आपका जो हार्डवर्क आपने करा है, आपने जो मेहनत करी है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं आगे देख रही हूँ इस जनवरी मंथ में, वो आपकी बहुत अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मुझे लाती हुई और फाइनेंशियल ऑप्शंस खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सो अब नंबर 5, जिनका साइकिक नंबर 5 है, दैट मीन्स जो लोग नंबर 5, 14th और 23rd को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ का, तो उनके लिए हम देखते हैं कि जनवरी 2020 इस मंथ का प्रेडिक्शंस आपके लिए। तो नंबर 5 पीपल, आई एम सीइंग कि जो आप पिछले मंथ की किन एनर्जीज, पिछले मंथ दिसंबर में आप किन एनर्जीज को लेके एंटर हुए थे, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्लो पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ में बहुत स्लो पॉसिबिलिटीज को लेके एंटर हुए थे, जिससे कि आप शायद अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे थे। आप शायद फील कर रहे थे कि मुझे बहुत पेशेंट होने की जरूरत है। आप मेडिटेशन, आप अपने आप को कुछ फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ भी चीज का राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, राइट डायरेक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट उससे रिलेटेड आपको वो लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो आप इस मंथ में आपने कोशिश भी करी है, आपने उन चीज़ों से बाहर आए हो, आपने खुद एक्शन लिए हैं, खुद डिसीजंस लिए हैं। अगर कुछ केसेस भी अगर कुछ चल रहे थे, आपने खुद उनसे लड़के आपने खुद वो डिसीजंस लिए हैं और आप उसको, उनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज लेके आप जनवरी मंथ में एंटर हुए हो। और उसके साथ साथ आपने बहुत एंथुसियाज्म दिखाया है, आपने बहुत चैलेंजिंग अपना टाइम जो निकाला है उस चीज़ को लेके, आपने बहुत जस्टिस, आपको खुद को फील हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिली है, एक गॉडेस दुर्गा की जो स्ट्रेंथ होती है, आपको वो खुद फील हुई है, वो एनर्जीज आप में, अगर मैं कहूँ तो बहुत अबंडेंटली आप उनको फील कर पा रहे हो। प्लस अगर मैं रिलेशनशिप सेक्टर की बात करूँ तो उस केस में भी अगर आप हो सकता है कुछ नए रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं, या कोई जिन लोगों के कुछ मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स है, तो उनके लिए ये कुछ मैरिज रिलेशनशिप्स भी इस जनवरी मंथ में मैं देख पा रही हूँ। सो पीपल हु आर बॉर्न ऑन 6, 15th and 24th of any month. Psychic number 6 वालों आपके लिए, let's see what January 2020 is there for you. तो अगर मैं देख रही हूँ आपकी पिछले मंथ दिसंबर से आप जिन एनर्जीज में एंटर हुए, तो उस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत सक्सेस, हार्मनी, आपने विक्ट्री बहुत देखी, आपने बहुत टीम वर्क से आपने बहुत काम किया, आपने अपने गोल्स को अचीव करा उस मंथ में। और प्लस आपने बहुत एक अच्छी न्यूज़ मिली, शायद आपको कुछ प्रमोशंस जो आपके वेट कर रहे थे, आपने उस मंथ में प्रमोशंस भी आपने देखे और बहुत हैप्पीनेस के साथ आपका दिसंबर मंथ निकला है। बट उसके साथ साथ आप जो एनर्जीज, उन्हीं एनर्जीज के साथ जब आप जनवरी में आए, तो मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ उतने सक्सेस, उतनी हर चीज अच्छी होने के बावजूद जनवरी में आते आते आपके शायद कुछ रिलेशनशिप इश्यूज मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ, कुछ आपके डिसअपॉइंटमेंट में देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप सेक्टर में। और उसकी वजह से शायद आप उन इमोशनल फीलिंग्स को आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आप उनकी उस वजह से शायद आपके कुछ बिजनेस फ्रंट पे भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स फील हुई। उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि शायद किसी थर्ड पर्सन की जो इंटरफेरेंस है वो मैं इसमें देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपके पर्सनल फाइनेंशियल फ्रंट्स पे और इमोशनल फ्रंट्स पे आप बहुत डिसहार्टन होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे इस जनवरी मंथ के अंदर। साइकिक नंबर 7, दैट मीन्स जो लोग 7, 16th और 25th को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए लेट्स सी कि हमारा 2020 का जनवरी मंथ क्या कहता है। तो अगर मैं आपकी देखूं कि आपके दिसंबर मंथ से अगर मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, तो ये एनर्जीज मुझे कह रही है कि आप बहुत खुश थे, आप बहुत हॉलिडे मूड में थे, आप बहुत एक हैप्पी प्रॉस्पेरिटी और एक बहुत सेलिब्रेशन से बाहर निकले हो। पर उसके साथ साथ मैं कुछ लोगों का देख पा रही हूँ, शायद कुछ 7 नंबर वाले लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि वो लोग बहुत
किसी फ्रस्ट्रेशन में, किसी चीज में बहुत बंधे हुए थे, किसी बाउंड में बहुत ज्यादा बंधे हुए थे, जिसमें कि वो उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कोशिश भी करी है, बट वो शायद उतनी बिल्कुल वो बहुत टाइम से उस चीज में बंधे हुए थे, बट उस मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि मुझे, उन्होंने एक्शन लिया है, उन्होंने खुद ये चीज सोची है कि मुझे बाहर निकलना है, मेरे खुद के बाहर निकलने से, या मेरी अपनी खुद की हिम्मत करे बिना मैं इस चीज से बाहर शायद नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। तो उन्होंने ये दिसंबर मंथ में ये कोशिश करी है, और मैं देख रही हूँ कि वो जनवरी मंथ में उस चीज से एक्चुअली वो बाहर निकल पाए हैं। उनकी पूरी तरह से अभी नहीं, अभी भी फिर भी उन्होंने अपना बोझा सर पे उठा रखा है, बट उन्होंने अब वो इस मंथ में आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप उस बैगेज को एक साइड पे रख के और आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन चैलेंजेस से, अपने हार्डवर्क से, उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनवरी मंथ में मैं देख रही हूँ कि आपके कॉम्पिटिशन्स और आपकी इन सब इश्यूज से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, और आप उनसे स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो लेट्स सी, आप कोशिश करिए, और इस जनवरी मंथ में मैं बहुत सारी होप देख रही हूँ कि आप इन चीजों से बाहर आ पाए। साइकिक नंबर 8, दैट मीन्स जो लोग नंबर 8, 17 और 26 को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए हम बात करते हैं कि हमारी इस मंथ की जनवरी 2020 क्या लेके आया। तो नंबर 8 पीपल, मैं अगर बात करूं कि आपकी पिछले मंथ की एनर्जीज जो आप पिछले मंथ्स में कैरी कर रहे थे, तो अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंटली हर चीजों को बहुत हैंडल कर रहे थे, बहुत इंटेलिजेंटली विजडम के साथ अपनी फाइनेंशियल चीजों को हैंडल कर रहे थे। आप अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। शायद आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी के साथ शेयर करना था, शायद इस वजह से आप बहुत, एक होता है ना जो एक बुजुर्ग आदमी जो एक घर का बड़ा होता है, वो एक स्ट्रेंथ लेके, एक डिसीजन होल्डर बन के कुछ चीजों को मैनेज करके चलने की कोशिश करता है, वो जजमेंट लेने की कोशिश करता है कि मैं किसी के साथ कुछ, सबके साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊं चीजें, मतलब सबको बैलेंस दे पाऊं, किसी के साथ कोई गलत नहीं हो जाए मेरे से। तो आप उस तरह की एनर्जीज लेके उस मंथ में चल रहे थे। आप नॉलेज भी अपनी शेयर कर रहे थे, और आप उन चीजों से, पर उसके साथ साथ मैं देखूं तो आप अंदर से इंटरनल आप कुछ चीजों को लेके शायद आपके माइंड में पीस नहीं था। आप शो कर रहे थे, आप हर चीज के लिए बहुत बैलेंस थे। आप लोग सामने वालों, उनके लिए जिनके लिए आप एक जस्टिस करने जा रहे हो, उनके लिए तो आप शायद बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी, बट शायद अंदर से आप कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट की कमी आप में नजर आ रही थी। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों फील कर रहे थे, बट आप कुछ शायद थोड़ा सा कंटेंटमेंट आपकी कमी हो रही थी। तो अब उसी से अगर आप उन एनर्जीज को लेके आप जनवरी मंथ में आए हैं, तो जनवरी मंथ में अगर मैं देखूं तो उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से शायद आपने अपने अंदर ये चीज सोच ली है कि मैं वो पास्ट मेमोरीज को, शायद आप कुछ अपने साथ क्लिंग करके चल रहे हो, तो आपको उनको मेमोरीज को थोड़ा पीछे छोड़ना पड़ेगा। और आपको सिर्फ ये चीज नहीं देखनी है कि वो मेरे पास क्या छूट गया, आपको आगे देखना है कि आगे मेरे लिए क्या रखा है। आपको वो आगे बढ़ के आपने चीजें सोचनी है। जो चला गया उन चीजों के बारे में आपको उनको पकड़ के नहीं रखना है। जो मनी फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो जो मनी अग्रीमेंट्स, जो मनी कमिटमेंट्स थे आपके, आप उनमें शायद आपके उन इश्यूज की वजह से शायद आप इस तरह के थॉट्स लेके चल रहे थे। तो इस जनवरी मंथ में आपकी एनर्जीज इसी तरह से लेके आप इसको आप आगे चल रहे हो। साइकिक नंबर 9, दैट मीन्स जो लोग 9, 18 या 27 को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए लेट्स सी कि जनवरी 2020 इस मंथ आपके लिए क्या प्रिडिक्शंस है। अगर मैं पिछले मंथ की एनर्जीज देखूं कि आपके दिसंबर मंथ से आप क्या एनर्जीज लेके आ रहे हैं, तो आप दिसंबर मंथ में जो आप बहुत एक्साइटमेंट में थे, बहुत सोशली भी आप बहुत एक्टिव थे, आप बहुत लाइफ में बहुत मूड से और बहुत मन से आप हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। और शायद मैं देख रही हूँ कोई आप नए रिलेशनशिप में भी शायद एंटर हुए हैं, कोई नया रिलेशनशिप, उस नए रिलेशनशिप को लेके मैं बहुत एक्साइटमेंट देख रही हूँ आप में। और उसके साथ साथ आपके मनी फ्रंट में भी आप शायद उस रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे से उसको शायद बहुत अच्छा वो देने के लिए आप उसमें रिलेशनशिप में भी बहुत स्पेंड कर रहे हो, और आप बहुत लैविशली अपनी लाइफ को जी रहे थे दिसंबर मंथ में। और उन एनर्जीज के साथ आप जब जनवरी मंथ में एंटर कर रहे हो, तो जनवरी मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप उस एंथुसियाज्म को बनाए रख रहे हो, आप उस चीज को बिल्कुल कायम रख रहे हो। आपकी जनवरी मंथ में भी आपके बिजनेस गेन्स, आपके बिजनेस में भी, आपके फाइनेंशियल रीजन में भी मैं कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं देख रही हूँ। आप उस एंथुसियाज्म से पूरा आप जनवरी मंथ भी अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ख्याल रख के आप उनकी पूरी एनर्जीज को अच्छे से वो कर पा रहे हो। प्लस मैं एक चीज और देख रही हूँ, थोड़ा सा उस एंथुसियाज्म को इतनी
स्ट्रांगली मत वो करिए कि कहीं आपको अचानक से धम के गिरना पड़े। थोड़ा सा स्टेप केयरफुल लेके चलिए, थोड़ी सी अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलिए। अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा एकदम हर चीज तेजी से मत करिए, थोड़ा सा अपना कंट्रोल करके चलिए, ताकि कोई अचानक से कोई चीज एकदम से इस मंथ में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट। सो थैंक यू एवरीवन इस मंथ के लिए। सो नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट फरवरी के लिए उस मंथ की मंथली प्रेडिक्शंस लेके आएंगे। Hello dear friends. So today I'm again with you, Dr. Shalini Bhugnani, your numerologist, tarot card reader, वास्तु कंसल्टेंट। हम लोग वास्तु फॉर हैप्पीनेस की सीरीज पे बात कर रहे थे। सो हैप्पीनेस किन चीज़ों से आती है, हमने और भी इतने वीडियोस में डिस्कस किया है कि अगर हम बेसिक हैप्पीनेस की बात करें तो हेल्थ एक जो है चीज़, मैं हमेशा ये कहूँगी अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम अंदर से खुश रहते हैं। कुछ सडनली अगर हमारे हेल्थ में, हमारे स्ट्रेस में, हमारे मूड्स में ज़रा सा भी इफेक्ट आता है तो वी स्टार्ट गेटिंग डिस्टर्ब। तो सबसे पहले उसका कंसर्न हमारे हेल्थ पे ही पड़ता है। मैं ऑलरेडी अपने सब वीडियोस में मेजरली इसी चीज़ पे ही फोकस करती हूँ कि जब भी अगर हमारी खुशियों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज है तो अगैन वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे वास्तु में, यानी कि हमारे घर में, वास्तु वैसे अगर हम कहें तो वास्तु क्या है, बेसिकली वेयर वी रिसाइड, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारी वो छत है, जहाँ पे हमारी बॉडी रिसाइड करती है। ऐसी अगर हम बात करें तो हमारी सोल कहाँ रिसाइड करती है, हमारी सोल रिसाइड करती है हमारी बॉडी में। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी भी एक वास्तु है जो कि हमारी सोल के लिए है। सो प्रॉब्ली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी सोल के वास्तु का और अपनी बॉडी के वास्तु का दोनों का ही ख्याल रखना है। तो अगर हम बात करें तो हमारे घर का वास्तु, हमारी बॉडी का जो वास्तु है वो कि हमारा घर है विच इज इक्वली एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर फॉर आर सोल्स वास्तु, दैट मीन्स फॉर आर बॉडी। तो अगर हम कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं कि अगर कई बार हमने देखा है कि हमारे बहुत रेगुलर किसी को अगर घर पे स्टमक इश्यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपने घर का ब्रह्म स्थान ज़रूर चेक करें। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे आपने कुछ पिलर या कोई बोरिंग या कोई बोरवेल ऐसा बना रखा है, कोई ऐसा वाटर सोर्स, कोई ऐसा पिट बना रखा है जिसकी वजह से वो आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको ज़रूर फेस करते होंगे। और हो सकता है आपके घर के साउथ डायरेक्शन को भी आप थोड़ा सा चेक करें तो कि वहाँ पे कुछ एक्सेस हीट एनर्जी तो नहीं जनरेट हो रही है जिसकी वजह से भी आपके स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केसर लेना है, पानी में उसको यू हैव टू जस्ट मिक्स इट विद वाटर एंड स्प्रिंकल इट इन योर हाउस, स्पेशली इन द ब्रह्मस्थान एरिया। और उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप घर में अपने एक मंडे के दिन आपको एक केसर डाल के खीर बनानी है और आपको रेगुलरली उसको खाना है, आपको अपना फैमिली मेम्बर्स में आपको खा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एंग्जाइटी, आजकल एंग्जाइटी, हाई बीपी, इरेगुलर हार्ट रेट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए मैं स्पेशली कहूँगी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, वहाँ पे कोई किचन हो सकती है तो उस चीज़ अगर ऐसा है तो प्लीज़ वहाँ से आप अपना उस चीज़ का ट्रीटमेंट करें और आप वहाँ पे मोगरा या जैस्मिन का एसेंस आप वहाँ पे उसको लगा सकते हैं विच विल हेल्प एनहांस दैट जोन। और अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से आपको बार बार चीज़ें आप देख रहे हो या कोई बीपी, लो बीपी की शिकायत हो रही है, कुछ मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो आप देखें कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप वहाँ पे चेक करें और वहाँ पे आप चंदन की अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कुछ हेडेक्स रहते हैं, सर्वाइकल का पेन रहता है, जनरली ये सब इश्यूज कई बार रहते हैं, तो आपने अब चेक करें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है कुछ स्टेयर्स या कुछ चीज़ आपने ऐसी स्टोर कर रखी है जिसमें शायद वो जंक लगा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ आयरन मतलब लोहे पे जैसे जंग लग जाता है, इस तरह की कोई चीज़ अगर वहाँ पे है तो आप प्लीज़ उसको हटा सकते हैं, जिससे कि आपको, क्योंकि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपको जिन लोगों को नॉर्थ ईस्ट नहीं समझ में आ रहा है, हमारे घर का नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है।
सकते हैं। अगर ईस्ट मीन्स आर पूर्व, जहाँ से सनराइज होता है, तो हमारे उसके लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, तो वो हमारे वास्तु पुरुष का हेड है। तो देखा जाए अगर हमारा वहाँ पे हमने स्टोर या बहुत हैवी वेट कुछ ऐसी चीज़ें डाल के रखी, दैट मीन्स वी पुट अ हैवी बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स एंड ऑन आवर हेड। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर ऐसा चीज़ें हैं तो आपको ट्रू एक्चुअली वहाँ पे एकदम से चीज़ें हटाते ही क्लियर करते आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। आप उस जोन में ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप रेगुलरली एसिडिटी और गैस्ट्रिक इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आई विल से देयर वाज सम सर्टेन एंगर इन योर इमोशंस। आपने कुछ बहुत ज़्यादा एंगर अपने इमोशंस में इकट्ठा करके रखा हुआ है, और कुछ लो एनर्जी भी अगर आप फील करें तो अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन चेक करिए, वहाँ पे टॉयलेट हो सकता है। अगर ऐसा चीज़ें हैं तो आप को मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूँ जिसको आप चैंट करें, विच इज़ BE टुगेदर क्लियर। So this switch word, chanting this switch word 108 times in a day, regular at least for 43 days, will really help you clearing out all these emotions and getting out of your acidity and gastric issues and some basic health issues. उसके अलावा अगर आपको बहुत बैक पेन रहता है, आपकी स्पाइन में रिलेटेड आपको इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो आप प्लीज डू चेक देयर कुड बी अंडरग्राउंड टैंक इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। सो प्लीज do get it filled, that's actually required. And you can also keep a bonsai से आप पीपल का एक छोटा सा प्लांट बनवा के आप वहाँ पे अपना वेस्ट डायरेक्शन में आप प्लेस कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग शाटिका, अगर आपको शाटिका का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, न्यूरो रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो अपने आप घर पे चेक करिए कि आपके नॉर्थ जोन में कोई किचन या स्टोर अगर बना हुआ है तो आप इस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हो। और वहाँ पे आप अपना वाटर एलिमेंट को इंक्रीज करें, वहाँ पे कुछ फाउंटेन लगा सकते हैं, कुछ वाटर से रिलेटेड आप सीनरी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप हाई बीपी से ज़्यादा हाई बीपी अगर आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो तो आप प्लीज़ डू चेक कि आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि आग्नेय कोण में कोई वाटर टैंक है अगर, तो प्लीज़ डू गेट इट फिल्ड। एंड यू कैन ऑल्सो प्लेस टाइगर आई का रॉक इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। इफ़ यू आर फेसिंग सम हार्मोनल इश्यूज, लोअर लेग प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, स्पेशली फीमेल्स की अगर हेल्थ इफेक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक करें। एंड प्लीज़ चेक देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे सेप्टिक टैंक होगा वहाँ पे, तो आप उसको प्लीज़ यू हैव टू गेट इट फिल्ड। Or you can use red raw coral there in that direction. You can just have some raw red coral and just dig it inside the earth. And you can also use camphor crystals regularly in that zone. If I talk, if you are having issues in your uterus or urinary tract या कुछ भी आपके reproductive organs में अगर आप issues face कर रहे हैं, तो अपने घर में चेक करिए कि आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई पिट या अंडरग्राउंड टैंक या बोरिंग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू गेट इट फिल्ड, गेट इट ट्रीटेड, दिस इज रियली नेसेसरी। यू कैन प्लेस रोज क्वार्ट्ज rocks or crystals in the southwest zone of your house, and you can also dig raw black tourmaline rocks in the southwest zone of your house. And if I say if you are facing any autoimmune diseases, अगर ऐसा चीज़ें आप फेस कर रहे हो तो अपने घर के आप चेक करिए कि जहाँ पे आप सो रहे हैं वहाँ पे आप हो सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस जोन के ऊपर सो रहे हो, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ तो उस केस में जियोपैथिक स्ट्रेस का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और आपको अपना बेड को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी चीज़ों ऐसे सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं तो एज आई हैव सजेस्टेड प्लीज़ डू चेक दीज डायरेक्शंस, एंड आई होप एंड आई really wish you have a healthy life. Thank you so much. So let's come to number 5. Number 5, people who are born on 5th, 14th or 23rd of this month or any month are people of number 5. So let's see number 5 people what this month of March is bringing for you. अगर मैं आपकी लास्ट मंथ की एनर्जीज की बात करूँ तो आपने शायद अपने कुछ
आपके एक्सपीरियंस जो थे वो शायद आपने उन एक्सपीरियंसेस से चीज़ों पे कुछ सीखा है, आपने यू हैव रियली लर्न हार्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. सो प्रॉब्ली दिस मंथ एनर्जीज, इफ आई से अगेन, दिस मंथ एनर्जीज आर लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड डिलेइंग, कि आपको कुछ थोड़ा सा अननोन चीज़ें हैं जो आप आउटकम वेट कर रहे हो, तो उनमें थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशंस और थोड़ा सा फील कर सकते हो, थोड़ा डिलेज फील कर सकते हो. कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी दिख रहे हैं, प्लस अनएक्सपेक्टेड विंस भी मुझे दिख रहे हैं. सो प्रॉब्ली यू जस्ट हैव टू फेस योर स्ट्रेंथ एंड करेज, and you know that good time again will really lie ahead, is lying ahead in your plans and all. जो भी आपके future plans हैं उसमें वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं. उसके अलावा थोड़ा सा मैं सिकनेस भी देख पा रही हूँ. थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए. यू रियली नीड टू टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. आप थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरत है. मे बी यू कैन जस्ट गो आउट फॉर अ स्मॉल हॉलीडे. यू जस्ट रियली नीड लॉट्स ऑफ relaxation at this point of time. आप meditations कर सकते हो. Let's see what angel cards have to say for you. So I just see angelic messages, overcoming difficulties. So the worst is Archangel Jeremiel का message है. तो the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. So probably same thing which we have already discussed, कि आप कुछ चीज़ें जो प्रीवियसली चैलेंजेस थे उनमें से बाहर आने की कोशिश करो. सो दिस इज व्हाट द एंजल हैज़ टू से. यू हैव टू ओवरकम योर डिफिकल्टीज. ओके, सो लेट्स कम टू नंबर 6. नंबर 6 पीपल, let's see what cards have to say for you in a month of March. Number 6 people who are born on 6th, 15th or 24th of any month. So I see little thought of negativity. आप शायद पिछले मंथ में बहुत सारा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो और शायद आप कर भी पाए थे. और प्लस आपके जो डिलेज थे उनको भी आप नेसेसरी उनको प्रूव कर पाए थे, उनसे ओवरकम कर पाए थे. जो आपकी चीज़ें अटकी पड़ी थी वो आप शायद उनको कवर कर पाए थे. और उसी की एनर्जीज को लेके जब हम मार्च मंथ में आते हैं तो आई सी आपकी लैकिंग इमेजिनेशन में देख पा रही हूँ. मतलब आप थोड़ा सा सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हो मुझे. और साथ ही साथ आप अपनी प्रेजेंटली जो मैं देखूं तो आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज है आप उनको पीछे छोड़ के आप अपने पैशंस को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, फिर भी आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो किसी तरीके से. उन चीज़ों को आप इमोशनल एनर्जीज को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, बट आप अल्टीमेटली आप अपने पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, पर फिर भी आपको वो लग रहा है कि मैं उस पर संभाल नहीं पा रहा हूँ उन एनर्जीज को. सो प्रॉब्ली यू रियली नीड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ट्रस्ट. आप उसको बना के रखो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ट्रस्ट को, जिसपे कि आपको लगता है कि मैं जो चीज़ ले पा रहा हूँ मैं उसको सस्टेन भी कर सकता हूँ. सो लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू से. सो एंजल कार्ड इज लाइफ रिव्यू. So Archangel Jeremiel has to say, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is imbalanced. So probably these are the energies and these are the cards what have they have to say for you for the month of March. So let's come to number 7 now. So number 7 people, that means people who are born on 7th, 16th or 25th of any month. So let's see what cards have to say for you. Number 7. So number 7 people, I see कि अगर हम पिछले मंथ की एनर्जीज की बात करते हैं तो कुछ हैप्पीनेस ज़रूर रही होगी. कुछ आपके मे बी सम मैरिज कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ. प्लस आप शायद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ एंगर से रिलेटेड चीज़ों में थे तो उससे आप फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ ऑब्स्टिकल्स शायद आपके लाइफ में पिछले महीने की एनर्जीज में थे, बट उन चीज़ों से अगर हम ओवरकम करके आते हैं तो आप अभी भी इस मंथ में भी मैं अगर देखूं तो आपको थोड़ा सा टेंशन पे करने की ज़रूरत है अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ पे, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे कुछ डिफ़िकल्टीज मैं देख पा रही हूँ. आप थोड़ा सा शायद आप हार्ड हार्टेड हो रहे हो. आप उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बेसिक अपनी एनर्जीज़ को सेटल डाउन करिए एंड देन डोंट निगलेक्ट योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनको पूरा सा अटेंशन पे करिए. अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या किसी वजह से
आपका दिल टूट सकता है, आप परेशान हो सकते हो. आई सी अ ब्रोकन हार्ट काइंड ऑफ थिंग इन योर कार्ड्स. तो अगर आप उन चीज़ों को, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं पूरा करोगे, आप अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ जो हैं उनको फोकस करके आप चीज़ों को आगे नहीं जाओगे, तो प्रॉब्ली या हो सकता है आपको कोई पीठ पीछे से वार करे, या कुछ डिसेप्शन में देख पा रही हूँ, या आपका कुछ हार्ट ब्रेक होने के चांसेस हैं. सो लेट्स कम टू नंबर 8. So number 8 people are people who are born on 8th, 17th or 26th of any month. So number 8 people, I can see कि आप पिछले मंथ की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो आप बहुत सेलिब्रेशन टाइम में थे, बहुत आपने अगेन आपके लिए भी शायद मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत आप हैप्पी मोड में, कुछ फंक्शंस, मैरिजेस, इन चीज़ों में आप शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे. और बट उसकी वजह से शायद उनमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी फेस हुई हो ट्रैवलिंग में, अगर आप ट्रैवलिंग में थे तो, या मे बी आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहे हो सकते हैं. तो अगर हम आपके इस मंथ की एनर्जीज की बात करते हैं, तो मार्च मंथ अगर मैं कहूँ तो आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स अगर हो सकती हैं. इमोशनल इम्बैलेंस में देख पा रही हूँ, आपकी कुछ डिसअपॉइंटेड या ट्रस्ट हो सकता है, आपका ट्रस्ट टूटे. बट आप just you have to be calm, do not argue, because that things can take the things to another level, जो और प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. तो बट अगर मैं मनी फ्रंट की बात करूँ तो मनी में आई रियली सी लॉट्स ऑफ एलिवेशन, लॉट्स ऑफ आपके जो प्लान्स हैं, जो भी आपने प्लान्स करे हुए हैं, उनमें मैं कुछ कंप्लीशंस देख पा रही हूँ. और फाइनेंशियली या आप कुछ अगर आपके सक्सेस में कुछ फाइनेंशियली और उन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी देख पा रही हूँ, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी देख पा रही हूँ. सो लेट्स कम टू नंबर 9 people. So number 9 people those who are born on 9th, 18th or 27th of any month. So that means if your birth number is 9 or if your destiny number is 9, means आपका जो birth का total number होता है वो भी अगर 9 पे है, so you can relate to this reading. So number 9 people, आप शायद पिछले मंथ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए थे. आप कुछ लोग शायद इस चीज़ से रिलेट करें कि आपको आप कई बार होता है कि आपको पता होता है हम डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, बट आप कोई बार किसी चीज़ को सामने दिखाना नहीं चाहते, बट अंदर से अगर आपको पता है कि ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो आप बस उन चीज़ों का ध्यान रखिए. और अब ये चीज़ तो खैर हो गई है, तो इसमें आप वहाँ पे आपके साथ शायद कुछ ना कुछ बैड कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो सकती हैं पिछले मंथ में. प्लस इमोशनल फ्रंट की बात करूँ तो इमोशनल फ्रंट में यू वुड हैव श्योरली पास थ्रू अ हैप्पी फेज विद योर फैमिली, कुछ मे बी ओकेजन और समथिंग. और अगर मैं मंथ ऑफ मार्च की बात करूँ, अब जो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज की बात करूँ, तो आपकी आप थोड़ा सा आपका गुड फॉर्च्यून में देख पा रही हूँ. मनी का कार्ड है, आपके होप का कार्ड आ रहा है मुझे, शॉर्ट जर्नी भी मुझे नज़र आ रही है. हो सकता है कुछ आप कुछ बीच रिलेटेड आप एक हॉलीडे पे जा सकते हैं. प्लस आपकी कुछ जो शायद आपकी आपने कुछ रिलेशंस, कुछ फ्रेंड्स शायद लूज़ करे होंगे, तो उससे भी मुझे लग रहा है कि आपके वापस से उनके साथ रिलेशंस बेटर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. और फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो आपकी बिजनेस कार्ड्स को मैं देखूँ तो आप थोड़ा सा एक्सपेंशन देख रही हूँ मैं, आप अपना अच्छे से कर सकते हैं, बट उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं बाहर किसी अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट्स मत करिएगा. सो दैट अगर आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो दैट कुड प्रूव समथिंग बैड, सो वो आपके लिए शायद लॉसेस कुछ ला सकता है. सो डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग व्हाट यू आर ऑलरेडी इनटू इट. सो I hope this readings for month of March would have been helpful for you, and so we'll meet you next time. Okay dear, bye bye, thank you. Hello dear friends, I'm Dr. Shalini Gugnani, your numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. So Valentine's Day is approaching, so you all must be very really excited about that. So today, first of all, I would like to wish all you a very beautiful relationship, hope your love, your relationships grow beautifully. So today what we are going to do is, today we are going to discuss
बिकॉज सी एज वैलेंटाइंस डे इज अप्रोचिंग, सबको एक इच्छा होती है कि मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, या आप सोच रहे हो कि आपको अपने लव वन को क्या गिफ्ट देना है. सो टुडे आज मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, बिकॉज आप शायद सोच रहे होते हो कि आपको आपके लव वन को कैसा गिफ्ट पसंद आएगा, उसके लिए वो गिफ्ट कैसा होगा. तो आज हम कुछ नंबर्स और कुछ सन साइंस को लेके आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप उनको गिफ्ट देंगे तो विच विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल इट विल एनहांस योर रिलेशनशिप ऑल्सो. तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पीपल हु आर बोर्न ऑन 1. सो एज पर आई से कि जैसे जिसका बर्थ नंबर 1 है, दैट मीन्स दोज हु आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th, दैट मीन्स दे आर रूल्ड बाय सन. तो people who are number 1 people, or if your sun sign is Leo, so either of ways, तो अगर आपका पार्टनर नंबर 1 का है या उसका सन साइन लियो है, तो आप उसको क्या गिफ्ट दें विच विल रियली वो उसको अच्छा भी लगे और उसके लिए वो फेवरेबल भी हो और वो आपके रिलेशनशिप को और एनहांस करेगा. सो अगर मैं बात करूँ नंबर 1 का, अगर आपका पार्टनर है, इफ योर पार्टनर इज नंबर 1, सो दैट मीन्स दे आर, वो अपने आप ऑलरेडी दे आर वेरी रॉयल, दे आर लीडर्स, तो उनको हल्की वल्की चीज़ तो कोई पसंद आएगी नहीं. सो दे रियली लव वेरी नाइस रॉयल थिंग्स, और बिकॉज बट एट टाइम्स दे आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक ऑल्सो. सो उनको कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत वार्मथ मिले, तो सबसे पहले तो आप एक उसको प्यारा सा हक देंगे तो वही एक उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होएगी. उसके अलावा द बेस्ट वुड बी अ रेड वेलवेट केक. रेड वेलवेट केक विल बी अ वेरी गुड स्वीट फॉर अ नंबर 1 पीपल. देन यू कैन give them roses, you can give them some nice gold jewelry, that would be really precious. A nice bracelet, if it's a man, you can have a bracelet. or but best जो चीज़ मैं कहूँ उनको अंदर से जो उनको पसंद आएगी वो, क्योंकि they are not very expressive, so a nice hug will be a best thing I would say for number 1 people. So let's come to number 2 people. So if your partner is number 2, that means people who are born on 2nd, 11th, 20th or 29th of any month, or they are Cancerians. So that means they are ruled by planet Moon. Moon is like थोड़ा सा सेंसिटिव, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे, वो इन लोगों की ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो उनको मून इज लाइक इमोशंस, तो एक हार्ट, एक इमोशंस, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, तो उनको आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल भी करना चाहिए. बिकॉज उनमें बेसिकली जो चीज़ आती है वो एक, उनको हमेशा कमिटमेंट चाहिए होती है. उनको आप शायद उनको एक बहुत प्यार से एक सोलमेट की तरह आप उनके साथ रहोगे ना, तो वही उनके लिए बहुत अच्छा एक गिफ्ट होता है. बट अदरवाइज यू कैन गिफ्ट अ पर्ल ज्वेलरी, सम सिल्वर ऑर्नामेंट्स, वाइट फ्लावर्स और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. सो आइदर ऑफ दीज थिंग्स विल बी रियली गुड फॉर इफ योर पार्टनर इज नंबर 2. सो लेट्स कम टू नंबर 3. Number 3, people who are born on 3rd, 12th, 21st or 30th of any month, or people whose sun sign is Piscean or Sagittarius, that means they are ruled by planet Jupiter. तो ये लोग, these are fun loving people, they are very romantic, they are very expressive I will say. तो उनके लिए अगर हम बात करें तो they love because they really want to express anything. तो उनके लिए आप best thing would be a butterscotch cake would really will it be very good for them. Then yellow flowers, you can give them something yellow flowers. You can give them gold jewelry, they love gold jewelry. Then because they are also writers, they are kind of they are some sort of spiritual or some sort of study related, or because they are creative also, so you can give them a nice pen or maybe a nice book would be a ideal gift for them. And then you can also they basically, what do they expect? They expect a kind of a loyalty and a commitment from someone. So probably if you give them that opportunity, that thing that will really feel that your partner is loyal to you or is committed to you, that will be the best gift for them, because they are themselves so expressive.
So probably it is not necessary that you are so expressive or not, or maybe there could be a reason, because in every relationship, it's not necessary that one person is expressive or not, but still when we are thinking that we want to gift our partner what they will love, so that's how we can decide on them. So probably these could be the nice gifts for them. So let's come to number 4 people. So number 4 people are ruled by Rahu. So as they are themselves very disciplined, very very secretive also, तो उनके लिए because वो already they disciplined है, तो उनको इस तरह से कुछ ऐसा चीज होनी चाहिए जिससे कि वो, बिकॉज अगर वो खुद इतने सीक्रेटिव हैं तो जब तक वो ओपन नहीं होंगे तो उनको कुछ ऐसी चीज जिससे कि वो ओपन हो सके. सो प्रॉब्ली अ ग्रीन एमेथिस्ट और अ ग्रीन something green eventually would be a really nice gift for them. Then you can take them for a nice chatpati treat. That will be really, they would really love to have that sort of treat, and especially if you make them eat golgappas, they'll go crazy, they'll really love it. And you can also offer them, you can also gift a chandan ka itra. So nice itra would be really a good gift for number 4 people. So let's come to number 5. Number 5 people, that means people who are born on 5th, 14th or 23rd of any month. So or the sun sign is Gemini or Virgo. So if those your partners, then probably they are ruled by Mercury. So they are like very speedy. उनको बहुत हर चीज जल्दी जल्दी करने की आदत है, ग्रोथ चाहिए उनको, प्लस उनको कम्युनिकेशन वाला जो चीज है, तो एक so for having a nice communication between you, the couple, you can take your partner to a nice date, where you really need to communicate. So and the best sweet, if I'll say, would be a mixed fruit cake, and or as I said, you can take your partner to a nice date like a movie or outing, something like that, or a nice lunch. And because number 5 वालों के लिए बेसिकली आप उनके लिए कुछ भी उनको गिफ्ट दे सकते हो, बिकॉज दे दैट इज अ काइंड, वो उनको they're very fun loving, they're very chirpy people. उनको हर चीज में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो you can give them nice garments, some cosmetics also, or a nice handbag would be a real good gift for number 5 people. Then let's come to number 6 people. Number 6 is ruled by Venus, or if your sun sign is Libra or Taurus. So then basically number 6 people, they are themselves very luxurious, और उनको हर चीज बड़े हाई फाई पसंद है, because they like branded things. So perfumes would be a best gift for them, or chocolates, they would love chocolates. They would love diamonds. So diamonds would be a really nice gift for number 6 people. Cosmetics also is a very nice thing. Then garments, some nice branded an outfit would be a real good gift for number 6 people. Then let's come to number 7. Number 7 people, that means they are those who are born on 7th, 16th or 25th of any month. They are ruled by planet Ketu. They are like a kind of वो अपने आप में ही बहुत गिवर्स हैं, थोड़ा सा रिसर्चर्स में रहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में रहते हैं, वो खुद ही किसी चीज ढूंढने में लगे रहते हैं. तो उनके लिए अगर मैं ये कहूँ तो प्लस उनकी दे आर लाइक उनके लिए कमिटमेंट एक, बिकॉज वो खुद इतने स्लो है, तो उनके लिए बेस्ट गिफ्ट जो रहेगा वो एक वॉच हो सकती है. यू कैन गिव अ नाइस रिस्ट वॉच टू नंबर 7 पीपल, और नाइस, बिकॉज उनको हमेशा अकेले रहना पसंद है, बिकॉज लोनलीनेस कई बार उनकी ज़्यादा चॉइस में रहता है. तो दे लव म्यूजिक, सो प्रॉब्ली अ नाइस म्यूजिक सिस्टम would be a real good gift for them, or you can take them on a nice date for a music concert or something. So that would be really good for number 7 people. So let's come to number 8. Number 8 means people who are born on 17th, 8 or 26th of any month, or if their sun sign is Capricorn or Aquarius, so that means they are ruled by planet Saturn. तो उनके लिए अगर हम कहें तो वो लोग खुद ही बहुत मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, तो दे विल काइंड ऑफ अ जज
ऑलवेज जज अ पीपल. तो आप अगर कहीं देखो कोई बंदा आपको ऊपर से नीचे तक देख के जज कर रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ व्हाट ब्रांड यू आर वेयरिंग और हाउ यू आर, सो यू कैन जज दैट्स अ नंबर 8 पीपल. तो उनके लिए थोड़ा सा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मटीरियलिस्टिक, तो उनके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म भी ऐड करने की जरूरत है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको किसी तीर्थ स्थान पे ले जाओ वैलेंटाइंस डे वाले दिन, बट स्टिल yes, they need to be little settled down. So और वो लोग शायद कुछ घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो you can have a nice home party for them. Then because they want a cozy relationship, so you can give them a nice black bag or a black forest cake or some dark chocolates would be a nice option for a gift for number 8 people. And let's come to number 9 people. They are ruled by Mars. That means people who are born on 18th, 9th, 18th or 27th of any month, they are ruled by number 9. Or if their sun sign is Aries or Scorpio, then they are like a more of a as I always say, they're hot and fairy, kind of a characteristic, but they are not very expressive or very romantic sort of people. They are more kind of a sporty or travel loving people. So you can give them something nice red, red roses again would be a better option, or you can give them a strawberry cake would be a nice thing. Some assorted cookies would be a nice thing for them, or you can give them some nice sunglasses would also be again a very good option for number 9 people. So you can give them something related to sports or something related to travel would also be, that these guys will really love for these kind of gifts. I hope these options will really help you decide what you have to gift to your partner on this Valentine's Day. So thank you so much. Thank you guys. सी यू सून. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द notifications of all the next videos which we are posting. Thank you.